Okay. Hello, students. Hello, am I audible, बच्चे? Yes, ma'am. Clear so far? Okay. Chalo, let us start with the topic. So today, last class we started with the topic of this laser. Okay, laser discuss किया था. ऑप्टिकल फाइबर हमने पढ़ लिया था. ऑप्टिकल फाइबर का एक ही चीज रह गया था, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. ओके, वो भी सिलेबस में है, वो आप पढ़ लेना. उसको मैंने पीपीटी में फाइल में बना दिया है. आई विल सेंड यू दैट थिंग एंड दिस इज वेरी कॉमन थिंग. एप्लीकेशंस आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर एंड लेजर एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ किस किस फील्ड में होता है ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन, पता है या नहीं पता? ओके, क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे. तो लेट अस सी दिस टॉपिक लेजर. लेजर तो हमने कल स्टार्ट कर लिया था. लेजर इज light amplification by stimulated emission of radiation. And what are the different characteristics of this laser radiation? That is, they are very highly directional, highly monochromatic, highly intense and highly coherent. ये सब चीज बाद में you can understand after discussing this topic. Okay, so laser का जो technique है, what is meant by the technique of this laser? That is based on the stimulated emission. This is light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, so the main technique behind laser emission, that is your stimulated emission. So last class हमने ये देखा था, डिस्कस कर रहे थे ये टॉपिक. Okay, what is three type of process? One is known as absorption, that is the stimulated absorption, मतलब ये कराया जाता है. And this is spontaneous emission जो अपने आप होता है, and this is stimulated emission. So these two technique, absorption and spontaneous emission, it is a mechanism of the emission of ordinary light. Okay, and ये तीनों मिलने के बाद absorption, spontaneous, stimulated emission, मतलब this is the technique behind the laser emission. But these two techniques are also happening simultaneously. So that's why you are saying main technique behind laser emission is the stimulated emission. तो क्या होता है absorption, क्या होता है बोलो, कल हमने डिस्कस किया था तीनों चीज. That is when you are saying this is atom is at a lower level and we are getting we are adding some amount of energy density, एक photon energy हमने add किया, then it is gaining that amount of energy and move to the, this is the lower energy level, ground state, it is the excited state. So this is the lower level and this is the upper level, E1, E2. After gaining this much energy, it is moving to this. And यहाँ पे इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, नियर ऑफ 10⁻⁸ सेकंड के आसपास होता है. तो यहाँ पे नहीं रह सकता, तो फटाफट ये जंप करके नीचे आ जाएगा. ओके, जब ये नीचे आएगा, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज एमिटिंग एज ए फोटोन. एंड यहाँ पे ऐसे प्रोसेस में जब होता है, देन बहुत सारे फोटोन भी एमिट होते हैं, लाइट एमिट होता है, बट सबका डायरेक्शन सारे डिफरेंट डायरेक्शन में होता है. सो यहाँ पे वी कैन गेट ए हाईली इंटेंस बीम नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें इनका जो डायरेक्शन होता है वो रैंडम होता है. एंड स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, when the atom after absorbing energy, when it is in the upper energy level E2, then at that position you have to supply again energy. Again अगर एनर्जी सप्लाई करेंगे, तभी एक्साइटेड स्टेट में है, हायर एनर्जी स्टेट में है, स्टिल वी आर सप्लाइंग सम एनर्जी, तभी नीचे आएगा. देन ये पहले का एनर्जी डिफरेंस, देन ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिया गया, दोनों एनर्जी को इट विल emit as a photon. दो फोटोन यू विल एमिट. ये जो दो फोटोन एमिट होगा, दोस टू फोटोन्स आर वेरी हाईली कोहेरेंट. तो ये ऐसे वही फोटोन फिर जब बार बार जाकर स्टिमुलेटेड एमिशन कराएंगे, so we are saying the output of the laser beam because of this stimulated emission is a very highly coherent. Highly coherent मतलब all the photons are same in the same phase. That's why they are very highly intense and highly directional and highly monochromatic. Okay, so these are some basic revision of this topic that we have discussed last class. ये सब हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था. एंड यहाँ पे एक रिलेशन है, वी आर गोइंग टू डिराइव दैट रिलेशन. ये भी वही है, इसका फोटो कल तो हमारे पास पीपीटी नहीं था, ऐसे देखा था. अब ये देखो, दिस इज द एनर्जी ऐड हुआ एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग दिस इज द एमिशन. ओके, so stimulated emission में let us consider, ये मैंने बोला था कल, आप हेडिंग देके छोड़ो, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स एंड द रिलेशंस. सो आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स अभी
हम निकालेंगे. सो आइंस्टाइन कोफिशिएंट किसके लिए है? दैट इज फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन एंड फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन. तीन प्रोसेस है एंड तीन प्रोसेस के लिए we will define you will derive a relation between the Einstein coefficient. So Einstein coefficient we will define here now. Okay, note down this thing. ये heading दो, relation between the Einstein coefficients. Okay, so Einstein coefficient किसके लिए? सबसे पहले this is the stimulated absorption. So first process हमारी क्या है? First process is our absorption, that is we are considering the stimulated absorption. So क्या होता है यहाँ पे? हाँ बच्चे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, so this is the lower energy state. Note down यहाँ पे lower energy state E1 and यहाँ पे number of particles in the state is E2 N1 and it is the upper energy state E2 and यहाँ पे number of particles N2. तो इसको जब हमने एनर्जी दिया, then it is moving to this energy level. तो यहाँ पे ओके, तो हाँ बच्चे दिखाई सुनाई दे रहा है अभी सबको? Yes, ma'am. हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके, so this is the rate of absorption is proportional to M1, that is proportional to U nu. Okay, that is the incident energy absorption and इसको हम लिखेंगे. अभी ये देखो हमने ये लिखा है that is the rate of stimulated absorption को क्या लिखा है? This is B2 B1 to N1 UV. So ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? It will depend on the nature of the two states and इसके लिए हम लिखेंगे rate of absorption equals to some constant B1 to 1 को मतलब this is absorption मतलब one state से two state गया, तभी इसको मैंने लिखा 1 to N1 UV. Okay, so this is the rate of absorption. Note down this thing. This is rate of absorption equals to B1 to N1 UV. Okay. Similarly, rate of second process हमारी क्या है? This is the first process. Second process is the process of your spontaneous emission. This is spontaneous emission. Okay. तो spontaneous emission किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अभी this is the second step E1, E2 यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे अभी ये spontaneous होकर ये ऊपर के स्टेट में है तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. तो यहाँ पे कोई एनर्जी का नेसेसिटी है नहीं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं this is the rate of spontaneous emission. This is the rate of spontaneous emission is proportional to number of particles in the second step N2 and it is proportional it is only this thing. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं rate of spontaneous emission equals to A21 N2. Okay, rate of spontaneous emission हम क्या लिख सकते हैं? That is A21 N2. See this thing. Spontaneous emission is proportional to only N2. So यहाँ पे हमने लिखा this is the rate of spontaneous emission equals to A21 N2. And ये A B1 to A21 these are known as the Einstein coefficient for that process. Okay. A21 को क्या करेंगे? This is Einstein coefficient for spontaneous emission. B12 is the Einstein coefficient for emission, spontaneous emission. Now let us see what is the stimulated emission. In case of stimulated emission में क्या होगा? अभी इस स्टेट में है थर्ड प्रोसेस हमारी क्या है? दिस इज स्टिमुलेटेड एमिशन. ओके, यहाँ पे क्या है? ये स्टेट में है एंड यहाँ पे वो सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी. तो
स्टेट के बाद भी हमने इसको एनर्जी दिया, एनर्जी देने के बाद इट विल कम डाउन। तो यहाँ पे थर्ड प्रोसेस को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। Rate of stimulated emission is proportional to इसको, it is proportional to N2 number of particles in this state and also proportional to the incident energy density. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, rate of, ये नीचे दिख रहा है, ठीक है, लिख रहे हूँ stimulated emission, ये नीचे वाला दिख रहा है, दिख रहा है, that is B21 N2 U, okay? तो यहाँ पे ये तीनों चीज को हमने डिफाइन कर दिया अकॉर्डिंगली। B21 इज द आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। ये भी all B12, A21, B21 are the Einstein coefficient for the respiratory process. ठीक है, these are known as the Einstein coefficient. Now we have to derive a relation between these things. Okay, so how you can derive this thing? That is हम यहाँ पे ये बताते हैं, that is when we are saying the system मतलब जहां पे this transition is happening, it is in equilibrium, then the rate of absorption equals to rate of emission. That is rate of absorption मतलब this is the rate of absorption, that should be equal to rate of emission. Emission मतलब rate of absorption, this is at equilibrium हम लिख सकते हैं rate of absorption is equals to rate of emission. Emission मतलब what is emission? There are two types of emission, that is rate of, दोनों emission का sum होगा, that is spontaneous emission plus stimulated emission. Okay, rate of absorption is equals to sum of rate of spontaneous emission plus rate of stimulated emission. That is, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, that is we can write B1 to N1 U nu is equals to sum of these two things. Okay, that is, this is rate of spontaneous emission, this is the rate of absorption is equals to rate of spontaneous emission plus rate of stimulated emission. Okay, so this is the equilibrium condition, and इससे हम क्या निकालेंगे, we will calculate one thing from this formula, that is B1 to N1 U nu equals to this, and यहाँ से from this we will derive a formula for this. हम इसको प्लस माइनस करेंगे, then we can get the formula for this. हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है? हाँ बच्चे, अरे सुन रहे हो नहीं Yes, सुन रहे हो? ma'am. हाँ, तो नोट डाउन दिस थिंग, ये लिखो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस रेट ऑफ सिमुलेटेड एमिशन. ओके, यहाँ पे ये लिखो, दोनों का रेट अभी डिफाइन किया था, ऊपर में सबका अलग अलग करके लिखा था, अभी दोनों को इक्वेट करेंगे. सो एब्जॉर्प्शन क्या है, B1 to N1 U nu इक्वल्स टू A21 N2 B21 N2 U nu. अभी इसको प्लस माइनस ये
ओके बच्चे, नाउ लेट्स सी दिस थिंग ओनली, ये देखो, उसमें देखने में तो फिर टाइम नहीं होगा. ओके, सो let us see that this is the value of u nu equals to a21 n2 by b12 n1 minus b21 n2. okay, अगर हमने इन दोनों को इक्वेट किया then we will get the value of u nu equals to this, and you can write this thing that is a21 upon, अभी इसका फॉर्म थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसको किसके साथ इक्वेट करना है, we have to equate this expression with the Planck's distribution law. तो उसके लिए जो चीज जरूरत है उसको हम करेंगे. तो ऊपर का डिनोमिनेटर को हमने, न्यूमरेटर को पूरा 1 एंड देन दिस इज a21, यहाँ पे कॉमन ले लिया a21 एंड नीचे से कॉमन ले लिया b21, सो दैट a21 अपन b21 ये बाहर चले गया एंड दिस इज 1 by n1 by n2 b12 by b21 minus 1, ऐसे फॉर्म में लिखा. नाउ यू नो दिस, ये वाला आपको पता है बच्चे, यू नो दिस एक्सप्रेशन दैट इज Yes, ma'am. n naught into exponential minus e by kbt फॉर एनी. अभी वहां पे n1, सपोज n1 इक्वल्स टू कितना, n1 का फर्स्ट स्टेट में n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सो यू कैन राइट दिस n1 इक्वल्स टू n naught exponential minus e1 upon kbt, n2 equals to this, that is we need the value of n1 by n2. okay, so यहाँ पे नोट डाउन, यहाँ तक ये वाला एक्सप्रेशन लिखो, ये लिखा था आपने कब, जब यहाँ पे लिखो, उसके बाद नोट डाउन द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, so that n1 by n2 का वैल्यू कितना आ जाएगी, दिस इज e2 minus e1 upon kbt, and e2 minus e1 को हमने ले लेंगे एज ए फोटोन ऑफ e2 minus e1 equals to h nu upon kbt. okay, so this is h nu upon kbt, यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे in this place. this is exponential h nu upon kbt will substitute here, so what value will get, so this value will get un equals to a21 upon b21 1 by this value b21 upon b21. okay, यहाँ पे जो था n1 का वैल्यू ये लिया, n2 का वैल्यू ये लिया, so that n1 by n2 का वैल्यू are getting this value and you are substituting this value here. okay, so यहाँ पे क्या आया, u nu equals to a21 b21 by this value. I think you know this formula. बताओ ये वाला फॉर्मूला जो इक्वेशन 2 लिखा है, you know this thing, that is a Planck's radiation formula. शायद आपको थोड़ा सा पता होगा, वरना ये सेकंड सेमेस्टर में आपका डेरिवेशन है इसका. so अकॉर्डिंग टू जनरल, हम जो भी रेडिएशन होता है क्वांटम मैकेनिकली आर कंसीडरिंग फ्रॉम द प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला, एंड प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला क्या कहता है, दैट इज अ इंसिडेंट एनर्जी डेंसिटी u nu equals to 8 pi h nu cube, okay, into, sorry, this is not there, ये a21 by a21, it should not be there. So this is the formula for Planck's radiation law. okay, and this is यहाँ पे c cube है. okay, this is 8 pi nu cube upon c cube, and this is, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं अबव दिस इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, देन क्या दिखा रहा है, a21 upon b21 is equals to 4 pi h nu cube upon c. okay, that is we are saying यहाँ पे 8 pi h, this is 8 pi h and c, speed of light, c cube, all are constant quantity, and we can say, because all other things are constant quantity, we can say a21 by b21 is proportional to nu cube, that is proportional to nu cube. okay, that is a21 is proportional by b21 is proportional to nu cube. so ये क्या दिखाता है, what is a21, a21 is the rate of spontaneous emission, b21 is the rate of stimulated emission, that is a21 upon b21 proportional to nu cube, मतलब always the probability of spontaneous emission is always large as compared to the probability of stimulated emission. Spontaneous emission always dominates over the stimulated emission in any case. okay, so ये वही चीज बताता है. एंड अगर हम इस टर्म को देखेंगे, यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, दिस इज b12 by b21 का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे तो और कोई पैरामीटर नहीं, मतलब दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल्स टू 1, दैट इज b12 इक्वल्स टू b21. okay, so b12 by b21 equals to 1 or b12 equals to b21. So
These are the relationship. This relationship generally is known as the Einstein relationship. This is a long question you are getting. ये एक long derivation में generally आता है, and very easily you can solve this derivation. Okay. So this is the relation between your Einstein coefficients. हाँ, कुछ समझ में आया बच्चे? बोलो. बीच में 2 बार कट गया, एंड तभी मैंने इसको ऐसे दिखाया कि ब्लैक बोर्ड में देखने से आपको शायद और भी दिक्कत होगी. Yes, ma'am. आया? ओके. सो ओके, हायर फ्रीक्वेंसी स्पॉन्टेनियस एमिशन इज मोर. सो जो भी होता है कि रेट ऑफ एमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन. सो जो हमने यहाँ पे बोला कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ज्यादा होता है. सो लेजर एक्शन के लिए क्या होता है? द रेट ऑफ एमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन. दैट इज जनरली इसमें जो होता है स्टिमुलेटेड एमिशन से इसको हम स्टडी कर सकते हैं, वरना नहीं हो पाएगा. नाउ लेट अस कम टू दिस थिंग, दैट इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन. बहुत कम होना चाहिए इनटू दिस स्टिमुलेटेड एमिशन. पर स्पॉन्टेनियस एमिशन तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते. पर स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे कराएंगे? ओके. सो हाउ द लेजर एक्शन इज पॉसिबल. अभी डेरिवेशन नहीं है, अभी ये चीज को समझना है. ठीक है, थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक है, इसको एज ए डेफिनेशन इसको याद करोगे, थोड़ा समझोगे. सो बेसिक चीज है दैट इज योर पॉपुलेशन इन्वर्सन. सो व्हाट डू मीन बाय दिस पॉपुलेशन इन्वर्सन? पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या कहता है? ओके, तो ये आ जाता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्सन. सो हमें पता है फ्रॉम प्रॉब्लम नॉलेज, अभी हमें पता है सपोज देयर आर 2 एनर्जी स्टेट्स E1 एंड E2. हमें पता है यहाँ पे लोअर एनर्जी स्टेट, इसमें N1 नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये अपर एनर्जी स्टेट यहाँ पे N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. जनरली क्या होता है? N1 इज मोर देन N2. पता नहीं होता. ओके, जनरली ग्राउंड स्टेट में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लाइक, सो N1 इज मोर देन N2. तो टू अचीव दिस लेजर एक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? दैट इज वी हैव टू ऑलवेज लेट N2 मोर देन N1. ओके, हमें क्या करना पड़ेगा? जनरली क्या होता है? N1 इज मोर देन N2, एंड हमें करना क्या पड़ेगा? N2 शुड बी मोर देन N1, एंड दिस इज नोन एज योर टू मेक. तो जनरली दिस इज, जिसको डेफिनेशन दे दो पॉपुलेशन इन्वर्सन, इसमें लिखो इन जनरली व्हेनेवर देयर आर 2 एनर्जी लेवल्स E1 and E2 having N1 and N2 number of particles respectively, then in general N1 is more than N2, and for laser action you have to make N2 more than N1, and this is known as the population inversion. Okay, इसी को कहा जाता है we have to invert the population, मतलब number of particles एक स्टेट में. इसमें ज्यादा होता है पर इसमें हमें ज्यादा पार्टिकल लाना ही पड़ेगा लेजर एक्शन करने के लिए. ठीक है, सो दैट वी कैन से पॉपुलेशन इन्वर्सन इज पॉसिबल देयर. ठीक है, समझ में आया क्या होता है पॉपुलेशन इन्वर्सन? ओके, N1 N2 क्या है? पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए डेफिनेट एनर्जी लेवल. जनरल लोअर एनर्जी में ज्यादा होता है एंड अपर एनर्जी में कम होता है. ओके, टू मेक दिस इन ऑर्डिनरी कंडीशन, this is N2 more than N1, that is population of the ground or lower level is always more than this excited state. तो क्या करना पड़ेगा? that is N2 more than N1. ये देखो, suppose this is, यहाँ पे एनर्जी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है? N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नीचे ज्यादा है. हमें लेजर एक्शन के लिए करना क्या पड़ेगा? N1 should be more than N2. ओके, सो ये होने के बाद ही लेजर हो सकता है. लेजर एक्शन करने के लिए दिस इज अ प्राइम रिक्वायरमेंट. सो हाउ यू कैन मेक दिस थिंग? पॉपुलेशन इन्वर्सन कैसे हो सकता है? हम बच्चे पॉपुलेशन इन्वर्सन समझ में आया? मैम दोबारा बता दीजिए एक बार. पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है? दैट इज हम कहते हैं जनरल जब 2 एनर्जी स्टेट होता है. ठीक है, जब जनरली 2 एनर्जी स्टेट होता है, एक है ग्राउंड स्टेट और एक है एक्साइटेड स्टेट. ओके, जनरली E1 में क्या है? ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाई करते हैं. ओके, हमें एनर्जी देने से दे विल मूव टू अपर एनर्जी लेवल. तो हमें क्या करना पड़ेगा? दैट इज हम इनको ऐसे एनर्जी सप्लाई करेंगे कि यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स होगा, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाई करेंगे. तो ये क्या है? ये तो एनर्जी के लेवल के फॉर्म में आ रहा है ना. तो यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं उसको एनर्जी ज्यादा देंगे, तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे. इसको एनर्जी देने से ही दे विल मूव टू अपर लेवल. तो वो करने का जो प्रोसेस है, दैट इज ये जो करने का जो तरीका है वो होता है एनर्जी सप्लाई मैकेनिज्म, एंड जिसको कहा जाता है पंपिंग. एंड पंपिंग क्या है? टू मेक दिस पॉपुलेशन इन्वर्सन, जो एनर्जी सप्लाई किया जाता है दैट इज नोन एज पंपिंग.
तो पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या है? वी हैव टू मेक n2 मोर देन n1. n2 मतलब n2 is the number of particles in the energy state E2, that should be more than number of particles in the energy state E1. To make n2 more than E1 is known as the population inversion. Okay. जनरली लोअर में ज्यादा होता है, ये देखो ये फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जनरली इसमें ज्यादा होता है, ऊपर में कम होता है, पर हम इसको ऐसे एनालिसिस देंगे ज्यादा पार्टिकल्स इधर चले जाएंगे, सो दैट ये वाला नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होना ही पड़ेगा लेजर एक्शन होने के लिए, ठीक है, वरना लेजर एक्शन पॉसिबल है ही नहीं. विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्सन लेजर एक्शन इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो हाउ यू कैन दिस अचीव दिस थिंग? तो इसको कैसे करेंगे? इसका तो एनर्जी कम है, तो इसको अगर एनर्जी सप्लाई करेंगे, if we supply energy then more number of particles will move to the upper energy level. Okay, अगर ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे देन ये ऊपर चला जाएगा, तभी इसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल लाई कर सकते हैं. ओके, so this is known as, कैसे कर सकते हैं? पंपिंग. पंपिंग क्या है? the process of rising more number of atoms to the excited state by artificial means is called your pumping. ऐसे हम प्रोसेस करेंगे so that हम उसको ऐसे एनर्जी सप्लाई करेंगे so that number of particles will move to the upper energy state. Okay, तो इसको कैसे कर सकते हैं? एनर्जी सप्लाई कैसे करेंगे? That is, there are different types of pumping. Pumping क्या है? ऐसे पंप मतलब एनर्जी देंगे. एनर्जी किसको देंगे? लोअर स्टेट पार्टिकल्स को. लोअर स्टेट पार्टिकल एनर्जी गेन करके कहां पे चलेंगे? अपर स्टेट में. अपर स्टेट जाने से क्या होगा? पॉपुलेशन इन्वर्सन हो सकता है. ओके, तो कैसे कर सकते हैं? दैट इज हाउ कैन अचीव दिस, हाउ यू कैन मेक दिस पॉपुलेशन इन्वर्सन बाय दिस different types of mechanism is there, that is known as your optical pumping, electrical discharge pumping and chemical pumping. So optical pumping में क्या होता है? In case of optical pumping there are light energy हम सप्लाई करेंगे, that is जो भी लेजर एक्शन जिसमें होता है जनरल, that is known as the active medium. यहाँ पे एक चैम्बर में अगर हम बताएंगे जो भी लेजर एक्शन जिसी में होगा, जिस मटेरियल में होगा, अगर ये जनरली सॉलिड में होता है, सॉलिड से लेजर, उसको हम ऐसे कॉइल में ये करेंगे, हम इसमें ऑप्टिकल एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी विल प्रोपेगेट इनसाइड दिस. इसको लाइट एनर्जी के अंदर ये मटेरियल को प्लेस करेंगे सो दैट इट विल गेन सम एनर्जी, particles will gain some energy, and after gaining that energy they will move to the upper energy state so that we can achieve population inversion. So optical pumping जनरली सॉलिड स्टेट लेजर में होता है. यहाँ पे xenon फ्लैश लैंप इसमें यूज किया जाता है. ओके, देन और एक है आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग, और एक है केमिकल पंपिंग. केमिकल पंपिंग में क्या? केमिकल रिएक्शन ऐसे हम कराएंगे सो दैट उसके अंदर केमिकल रिएक्शन ऐसे होगा दैट विल सप्लाई एनर्जी टू दिस. सो हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हीलियम नियन लेजर, दैट इज बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग. तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब आपको पता है, जहां पे वी आर प्रोवाइडिंग है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद द अदर पार्टिकल्स एंड दे विल ट्रांसफर दैट एनर्जी टू दिस. ओके, एंड ये कहां पे होता है? ये गैस लेजर में ही होता है. इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग कैन बी अचीव्ड इन ए गैस लेजर. इस टाइप ऑफ पंपिंग हम एक गैस लेजर में ही यूज कर सकते हैं. ओके, कुछ समझ में आया बच्चे? पंपिंग क्या है? यस मैम, आया? ओके, सो ये है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ऑप्टिकल, केमिकल. सो यहाँ पे एक ही हम टेक्निक यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग. अभी और एक बात आ गई, हमने क्या बोला? पॉपुलेशन इन्वर्सन किससे और किसके बीच में करेंगे? ओके, हमने पहले तो बता दिया इतना सारा चीज कि ये दो स्टेट है, पॉपुलेशन इन्वर्सन E1 एंड E2 के बीच में अगर हम करेंगे तभी लेजर एक्शन पॉसिबल हो सकता है, बट प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, ये करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली दो एनर्जी लेवल के बीच में लेजर ट्रांजिशन हो सकते हैं. प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, प्रैक्टिकली इसमें पॉसिबल नहीं है. मतलब लेजर ट्रांजिशन कैसे होता है? हाउ इट इज लेजर ट्रांजिशन इज देयर, हाउ वी कैन मेक दिस n2 मोर देन n1. तो अभी हम इसमें बताएंगे देयर आर सम मेटास्टेबल स्टेट्स. ओके, सो हम जब हम बताते हैं ये किसमें होता है, किसी मटेरियल के एटम में, these are different एटॉमिक ट्रांजिशन. Suppose this is your first energy level E1, ये एनर्जी लेवल E2, इसका एनर्जी इससे ज्यादा है, एंड दिस इज E3, इसका एनर्जी इससे ज्यादा है. ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? दिस स्टेट E2 इज नोन एज ए मेटास्टेबल स्टेट. इसको क्या कहा जाता है? मेटास्टेबल स्टेट. अकॉर्डिंगली हम अवेयर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मेटास्टेबल स्टेट्स.
one is known as the third level laser, another is known as your fourth level laser. That is a 3 level scheme, another is a 4th level scheme. तो 3 लेवल में क्या होता है, हमने जो पहले बता दिया था, यहाँ पे E1 E2 नहीं होता, E3 होता है, एंड यहाँ पे एक एनर्जी लेवल लाई करता है जिसको कहा जाता है मेटास्टेबल स्टेट. तो एक्चुअली ये इसका काम क्या होता है, हम क्या कहते हैं, हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, N1 मोटर N2 करना है, हमें यहाँ पे एनर्जी सप्लाई किया, एनर्जी सप्लाई करने से इट इज गेनिंग एनर्जी एंड मूव टू द अपर एनर्जी लेवल. पॉपुलेशन बहुत सारे पार्टिकल ऊपर लेवल में चले गए और वहां पे दे कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पे जनरली जो ये लाइफ टाइम इसका होता है बहुत कम होता है, यानी पर 10⁻⁸ सेकंड. तो यहाँ से फटाफट स्पॉन्टेनियस एमिशन होके ये कहाँ पे आ जाएंगे, और एक इंटरमीडिएट लेवल. ओके, ये और एक इंटरमीडिएट लेवल, ये जो लेवल क्या होता है समझ में आ रहा है, जैसे हम बताते हैं ना 1s2 2s2 3s2 3p6, ऐसा डिफरेंट जो एनर्जी लेवल होता है, दैट इज इनसाइड दैट एटॉम. उस एटॉम का जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, उसी में ये चीज होगा. एंड ये E3 E2 हम अपने आप चूज नहीं कर सकते, ये उससे दिस इज फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, एंड जिस मटेरियल में ये कंडीशन सैटिस्फाई होकर लेजर निकल सकते हैं, वी हैव टू यूज ओनली दोस मटेरियल. ओके, तो हमने क्या किया, एनर्जी किया, यहाँ पे बहुत सारे चले गए. तो फर्स्ट प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन हो गया. देन यहाँ से जो है फटाफट यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन, मतलब इसको हम क्या करते हैं, दैट इज अ रैपिड डीके होके यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स आ गए. अभी इस स्टेट में बहुत यहाँ पे चले गए थे, यहाँ पे नहीं रह पाए, देन यहाँ पे आ गए. तब तक स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होता रहता है. ओके, प्रोसेस चलता रहे, ऑब्जर्वेशन भी होता रहता है वो. अभी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होकर ऊपर भी चला गया, यहाँ पे भी कुछ आ गया. नाउ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव बिटवीन दिस टू लेवल. इन दोनों के लेवल के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन जब अचीव हो सकता है, एंड व्हेन दिस atom will come to this level, then we can get a laser beam from this thing. And यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है, इसको कहा जाता है नॉन रेडिएटिव डीके. इसको हम कहेंगे दिस इज, यहाँ से जो आता है नॉन रेडिएटिव डीके में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी डिफरेंस, वो अदर फॉर्म में लॉस होगा, पर वहां पे कोई फोटोन एमिट नहीं होगा. ओके, वहां पे कोई फोटोन एमिट नहीं होगा. फोटोन एमिट कहाँ पे होता है, दैट इज E2 minus E1 पे we are getting this one photon every 4 seconds. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका एनर्जी वैल्यू, इसका एनर्जी वैल्यू, और हमारी एनर्जी कैसे आती है, दैट इज E equals to HU की फॉर्म में आती है. तो उतना एनर्जी का अगर हम यहाँ पर डिफरेंस से, तो ये उसी हिसाब से उतना फ्रीक्वेंसी का फोटोन इट विल एमिट. ठीक है, तो दिस इज योर 3 लेवल लेजर में. तो ये क्या था, सबसे पहले पंपिंग किया, ये इस फिगर में देखो, जो इस फिगर में दिखाया, दैट इज पंपिंग किया. तो यहाँ पे एनर्जी ऊपर चला गया, यहाँ से फटाफट डिके होके स्टेबल वहां जाए, दिस इज मेटास्टेबल स्टेट फॉर दैट पर्टिकुलर एटम. देन यहाँ से फिर स्टिमुलेटेड एमिशन होके ये फिर नीचे की तरफ आए. यहाँ पे जब ये स्टिमुलेटेड एमिशन होके नीचे की तरफ आएगा, we'll get 2 photons and we are getting this laser beam. Okay, and यहाँ पे वही चीज फिगर और अनदर फॉर्म का ये एक फिगर है, दैट इज ये फर्स्ट ट्रांजिशन में, फर्स्ट डीके में इधर आ गया नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में, देन यहाँ से यहाँ तक फिर जब जंप किया, देन स्टिमुलेटेड एमिशन होके ही एक फोटोन निकल रहा है. बट समझ में आया बच्चे, 3 लेवल क्या होता है, 3 लेवल स्कीम क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मेटास्टेबल स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट इज एन इंटरमीडिएट लेवल. ये एक इंटरमीडिएट लेवल बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द टॉप लेवल. ओके, एंड यहाँ पे अगर एक लेवल है, देन उसको कहा जाता है 3 लेवल स्कीम. अगर यहाँ पे आपका और एक लेवल आता है, देन दैट इज सेड टू बी 4 लेवल स्कीम. ओके, समझ आया बच्चे मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है. ओके,
ओके हाँ बच्चे, okay, now let us see this thing. बच्चे 3 लेवल मेट्रो स्टेबल स्टेट समझ में आया? मेट्रो स्टेबल स्टेट समझ में आया? मेट्रो स्टेबल स्टेट क्या होता है? एक इंटरमीडिएट लेवल होता है जिसमें पार्टिकल जिसका लाइफ टाइम इज मोर देन द लाइफ टाइम ऑफ द अपर एक्साइटेड स्टेट एंड पॉपुलेशन इन्वर्सन उस मिड स्टेट एंड ग्राउंड लेवल के बीच में होके लेजर एमिट कर सकता है, तो दैट इज नोन एज योर मेटास्टेबल स्टेट। ओके, समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना, अरे समझ में आया? यस। ओके, अभी 4 लेवल देखो, 4 लेवल में क्या होगा, फिगर से देख लो क्या होगा इसमें, बताओ लेजर ट्रांजिशन कहां से और कहां पे हो रहा है? तो दिस इज ग्राउंड लेवल, इसमें 0 लिखा है, यहाँ पे गया 3rd लेवल। तो जब भी होगा इस स्टार्टिंग से सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, सीधा टॉप लेवल में गया, जो हमने E1 E2 लिया था उसमें ही गया, ऊपर में लेवल में गया। उसके बाद फिर कहां पे आया? इट इज कमिंग टू, यहाँ पे क्या है, 2 इंटरमीडिएट लेवल है, मतलब ये एक्स का फिक्स लेवल है, ये और एक फिक्स लेवल है, या और एक्स का फिक्स लेवल है। तो यहाँ से ये डिके होके कहां पे आएगा? इट विल कम टू दिस लेवल। ओके, इसका लाइफ टाइम ज्यादा है एंड तब तक ये प्रोसेस भी ऑब्जर्व करके ऊपर जाना वो भी चलता रहेगा। देन यहाँ से फिर डिके होके इधर आया, देन हम ऐसा प्रोसेस चलते चलते पॉपुलेशन इन्वर्सन हैव टू अचीव बिटवीन दिस 1 and 2 लेवल। सो ये 1 and 2 लेवल के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्सन जब अचीव होगा, देन by stimulated emission we can say laser light will be emitted, and यहाँ से आने के बाद जब ये नीचे आएगा then that is the first decay, that is यहाँ पे फिर कोई emission नहीं होगा, the energy difference of energy is lost in some other form, यहाँ पे ये नहीं होगा, फोटोन एमिट नहीं होगा, यहाँ पे हम बताते हैं फर्स्ट डीके में इधर आ जाएगा। सो लेजर ट्रांजिशन जो होगा इन बिटवीन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ दिस 2 लेवल। ओके, तो यहाँ पे जो 2 लेवल बना था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक लेवल सबसे पहले हमने इसको ये किया, यहाँ पे चला गया ऊपर, देन यहाँ पे और एक लेवल है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल चले गए, देन यहाँ पे डिके होके वी आर गेटिंग पार्टिकल्स एट दिस स्टेट, एंड यहाँ पे तब तक ये अब्जॉर्प्शन होते होते जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होता रहेगा, तब तक हमें पॉपुलेशन इन्वर्सन हैव टू अचीव बिटवीन दिस 2 लेवल, सो दैट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दैट इज that energy difference will be emitted as photon। यहाँ से 2 फोटोन हम एमिट करके लेजर ट्रांजिशन करा सकते हैं बाय मींस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अभी ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक दैट इज नॉन रेडिएटिव, फर्स्ट डीके में आएगा, ये भी फर्स्ट डीके में आएगा, लेजर ट्रांजिशन विल हैव टू बी अचीव्ड ओनली बिटवीन द 2 लेवल। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ योर 4 लेवल लेजर। 4 लेवल लेजर में ऐसे होता है, यहाँ पे भी वही चीज ही दिखाया, 4 लेवल दिखाई, E1 E2 E3 E4। पहले E1 से सीधा यहाँ पे चला गया, देन यहाँ से फिर ट्रांजिशन से इधर आया, यहाँ पे फोटोन एमिट हुआ इन 2 डिफरेंस में, देन यहाँ पे फिर नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, सो दिस आर द, तो हमें लेजर ट्रांजिशन जिस 2 लेवल के बीच में होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन हैज टू बी अचीव बिटवीन दोस 2 लेवल्स, सो दैट लेजर ट्रांजिशन इज पॉसिबल बाय मींस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अरे कुछ समझ में आया? 3 लेवल 4 लेवल, या सब सो रहे हो? हाँ, यस सोनिका? यस मैम, समझ आ रहा है। समझ में आया ना? यस मैम। ओके, अभी देखो, देन दिस इज द व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए लेजर। सो लेजर प्रोसेस होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अभी बताओ क्या क्या चाहिए आपको? दैट इज द पंपिंग सोर्स, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, किस सोर्स का एनर्जी चाहिए? दैट इज वी हैव टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के लिए जो पंपिंग मैकेनिज्म होने के लिए हमें जो भी चाहिए, चाहे ऑप्टिकल पंपिंग है तो लाइट एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल पंपिंग है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब चाहिए, या फिर केमिकल पंपिंग के लिए कोई केमिकल रिएक्शन हमें करना पड़ेगा। सो दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, देन द एक्टिव मीडियम क्या है? दैट इज जहां पे ट्रांजिशन होगा,
कोई मटेरियल में होगा। ये जो हमने बोला E1 E2 E3 किसका है, एट ए पर्टिकुलर, अगर हम जैसे हीलियम नियॉन लेजर में नियॉन का डिफरेंट डिफरेंट लेवल रहता है, ये किस लेवल में है, किस लेवल में गया, फिर उसका मेटास्टेबल स्टेट में कितना एनर्जी है, देन उतना डिफरेंस का फोटोन वो एमिट करेगा। ओके, सो दिस इज द एक्टिव मीडियम। एनर्जी सोर्स तो है एक्टिव मीडियम, क्या है जहां पे जो मटेरियल जिसमें ये चीज हैपन होता है, दैट इज नोन एज द एक्टिव मीडियम। ओके, एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर, थर्ड टर्म क्या है, दैट इज द ऑप्टिकल रेजोनेटर और ऑप्टिकल कैविटी। तो ये ऑप्टिकल कैविटी इसको क्यों कहा जाता है, ये देखो इसका जो फिगर है इज दिस थिंग, हम इसमें देख सकते हैं। तो ये क्या है जो आपका एक्टिव मीडियम इज दिस थिंग। ओके, यहाँ पे जो है गेन मीडियम लिखा है, दैट इज द एक्टिव मीडियम, जिसके अंदर जो भी सपोज सॉलिड स्टेट लेजर मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल यहाँ पे है, गैस लेजर मतलब गैस, एक्टिव मीडियम इसका गैस है, दिस इज द एक्टिव मीडियम। ओके, ये है आपका एक्टिव मीडियम एंड इसको हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, करने से इसके अंदर लेजर ट्रांजिशन होगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, दो मिरर से, एक क्या है, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर और एक है पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर। दिस इज fully reflective mirror and this is partially reflective, partially transparent mirror. Okay, तो इसमें क्या होगा, जैसे हम बताते हैं ये कैविटी को हम ऐसे एनक्लोज करेंगे सो दैट इसको एनर्जी देने से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ ऊपर फर्स्ट एक स्टेट में, जो भी एटम है, जो भी मटेरियल लिया है उसी का एटम में ये ट्रांजिशन होगा, ऊपर गया फिर नीचे आया, मेटास्टेबल स्टेट में गया, लेजर जो एमिट होगा विद इन दैट प्रोसेस। हमारी एक्चुअली मोटो क्या होता है यहाँ पे, दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ज्यादा ना हो, सो दैट स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा हो, बट वी कैन अवॉइड द स्पॉन्टेनियस एमिशन आल्सो। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन, जो फोटोन इसके अंदर निकल के आएगा, दे विल मूव बिटवीन द इस कैविटी के अंदर इधर उधर मूव करेंगे। ओके, तो ये जो गया इधर गया तो मिरर है, फोटोन है तो यहाँ से रिटर्न बैक किया, तो ऐसे होते होते वो बार बार इस कैविटी के अंदर मूव करते करते फटाफट अब्जॉर्प्शन होता रहेगा एंड इट विल मूव टू द अपर एनर्जी लेवल आल्सो। ये जो अब्जॉर्ब करेगा उसी फोटोन बार बार मूव करते करते यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से फिर क्या है, तो जो नंबर ऑफ फोटोन्स विल बी एम्प्लीफाइड एंड दे विल मूव फ्रॉम ऊपर लेवल, फटाफट अब्जॉर्ब करके दे मूव टू द अपर लेवल एंड यहाँ पे जिस फोटोन को एनर्जी मिल गया, तो यहाँ पे जो पार्शियल ट्रांसफर मिरर में क्या होगा, फोटोन जो एमिट करके आएगा दैट विल बी एमिटेड एज ए लेजर। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैविटी में वही फोटोन बार बार आपका करा रहे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने से फोटोन एम्प्लीफाई हुआ, तो फोटोन बहुत ज्यादा हो गया, मतलब फोटोन ज्यादा ऑब्जर्व करके ऊपर चला गया, ज्यादा ऑब्जर्व करके ऊपर चला गया, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्सन हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्सन हुआ मतलब वी कैन से लेजर एमिट हो गया। एंड जो भी फोटोन इस ट्रांसपेरेंट मिरर से, पार्शियल ट्रांसपेरेंट मिरर से बाहर निकल के गया, दैट इज द लेजर बीम वी आर गेटिंग। ठीक है, सो मेन कंपोनेंट में ये जो आया क्या है आपका ऑप्टिकल कैविटी और रेजोनेटर। ऑप्टिकल कैविटी रेजोनेटर क्या होता है, इट इज एनक्लोज्ड बिटवीन द ए फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर एंड ए पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर एंड इसी को कहा जाता है एज ए कैविटी और ए रेजोनेटर। ओके, सो यहाँ पे कैसे ट्रांजिशन होता है, दैट इज ग्रेजुअली, दिस इज मिरर से बार बार रिफ्लेक्शन से फोटोन का एम्प्लीफाई होते होते, लेजर ट्रांजिशन अब्जॉर्प्शन होते होते, स्टिमुलेटेड एमिशन होते होते वी आर गेटिंग लेजर बीम। जो फोटोन बाहर निकल के इस प्रोसेस में आ गया, दैट इज इसी से जो आया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस लेजर बीम। सो दिस इज द रफली आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ ए लेजर कैसे ट्रांजिशन होता है। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स आर देयर। So one is known as your solid state gas laser, liquid laser, semiconductor laser, बहुत सारा है। तो हमारे पास एक ही है, we'll discuss that. That is your only gas laser. This is your helium neon laser. Okay. So before we start, बताओ पहले समझ में आया नहीं आया कि helium neon laser में बहुत कुछ इसमें है सिंपल, पर समझना पड़ेगा। जब ये सब समझ में आएगा तभी helium neon laser समझ सकते हो। बताओ अभी तो क्या 10 बजे ही हो, बाकी सब सो गए जाके। अरे बच्चे बोलो कुछ। हाँ हर्षित कुमार बोलो। हर्षित कुमार। यस मैम। हाँ समझ में कुछ आया? हाँ जी मैम। आ गया? मेटास्टेबल स्टेट क्या है समझ में आया? अरे बोलना। क्या मैम? मेटास्टेबल स्टेट समझ में आया? अरे ये सर नो बोलो।
मैम आवाज ढंग से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आशीष, चैतन्य, आया समझ में? यस मैम। आया? हर्षित चौहान, आपको आया बेटा? धूपम, मुदित, आया समझ में? आया? यस सबको आ गया? हाँ Yes, ना, सबको Yes. आ गया? ओके, so let us see this helium neon laser. Okay, so helium neon laser में क्या होगा? helium neon laser में एक्चुअली helium neon laser में क्या होता है, हम यहाँ पे दोनों गैस लेते हैं, एक होता है हीलियम और एक होता है नियॉन. ओके, ये जो एक्टिव मीडियम है, एक्टिव मीडियम में हमारी दोनों गैस इसमें आएगा, एक है हीलियम और एक है नियॉन. तो इसका अब सोचते हो दोनों गैस का काम क्या है, हीलियम एंड नियॉन. एंड इसमें हीलियम का परसेंटेज देखो, किसी किसी बुक में 10:1 दिया है, नियॉन कम है, हीलियम ज्यादा है. इसका 10 है, कभी कभी इसमें आ जाता है 7:1:1. तो दोनों सही है, मतलब ये हम कह सकते हैं इसका जो साइज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हीलियम इज मच मोर एज कंपेयर्ड टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दिस नियॉन. ओके, एंड ये एक लंबा ट्यूब के फॉर्म में है, दैट इज एक 80 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर डायमीटर डिस्टेंस ट्यूब में दे आर एनक्लोज्ड. एंड इसमें काम क्या करता है, काम कैसे करता है, फिगर ऑफ दिस, यहाँ पे एक एनक्लोज हो गया एंड यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब में इसको एनक्लोज किया गया. डिस्चार्ज ट्यूब में हम क्या करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू एंटर इनसाइड दिस चैम्बर. ओके, इसके अंदर ये एंटर करेगा फास्ट मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब भी इलेक्ट्रॉन का बीम इसके अंदर एंटर करेगा, then ये क्या करेगा, इट विल कोलाइड विद द हीलियम एंड नियॉन एटम्स. हीलियम के साथ भी कोलाइड करेगा, नियॉन के साथ भी कोलाइड करेगा. एंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन, दिस इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, दे विल कोलाइड विद द हीलियम एटम. मतलब इलेक्ट्रॉन गया, कोलाइड किया किससे, हीलियम को, एंड इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी. इसका एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहां से आया, डिस्चार्ज ट्यूब में हमने उसको सेंड किया, एंड दैट इज अलाउड टू इंटरप्ट विद द हीलियम एटम so that it is transferred its energy to the helium atom. Okay, and electron directly नियॉन को नहीं दे पाएगा एनर्जी, क्योंकि नियॉन का मास इज मच मोर एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. तभी हीलियम का एनर्जी दो करेगा, हीलियम एनर्जी गेन करके हीलियम इज ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी टू द नियॉन एटम. ओके, इसमें बेसिकली क्या होता है, हीलियम का काम है पंपिंग में हेल्प करना, so it is help in pumping mechanism. ओके, एंड नियॉन क्या है, जो एक्टिव मीडियम में लेजर ट्रांजिशन होगा, दैट इज इनसाइड दिस नियॉन. नियॉन के अंदर ही ये ट्रांजिशन होगा. ओके, चलो आपका टाइम हो गया, तो हम अभी इसको स्टॉप करेंगे. कल ये थोड़ा सा पोर्शन बचा, ये कर लेंगे. ये दोनों टॉपिक, मुझे पता है यू आर हैविंग लॉट ऑफ प्रेशर, बट ये टॉपिक दोनों है, इजी टॉपिक है, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो या लेजर हो, ज्यादा कुछ है नहीं. इसको तो आपको जैसे टाइम एडजस्ट कर सके पढ़ो, वरना जो छोटे छोटे डिफरेंस है, छोटे छोटे डेफिनेशन है, उतना ही पढ़ लो. डेरिवेशन अगर नहीं होता देन उसको तो हम अब छोड़ दो, समझ गए. छोटे छोटे जो डिफरेंस होता है ऑप्टिकल फाइबर का, जैसे बोला था, वो सब कर लेना. बाकी यहाँ पे व्हाट डू मीन बाय पंपिंग, व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्सन, व्हाट डू मीन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, व्हाट डू मीन बाय डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन. इतना छोटे छोटे टॉपिक आप देख सकते हो अगर आप चाहे तो, वरना फर्स्ट यूनिट को कर लो, प्रिपरेशन को कर लो, देन आल्सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फॉर योर एग्जाम. ठीक है, तो कल कोई है तो हम इसको एंड करेंगे, और कोई डाउट है तो विल डिस्कस दैट थिंग. ओके, चलो लेट अस एंड द मीटिंग नाउ.